I have been informed that this Ayush conclave will be of 3 days and will cover a conference, CUME and Ayush Health Mela in Jamia Millia Islamia. I have been informed that over 500 participants and manufacturers of Unani Ayurvedic fraternity from across the country are participating in this event. I have been informed that there are delegates from Tehran University, Germany, UAE and Sri Lanka. I welcome them all to India. The Unani system of medicine is a treasure of herbal wisdom. Originated in Greece, was nurtured and developed by the Arabs and luckily got adopted as an integral part of the ancient healing system of India. इसलिए सब जो रिसर्चर्स है, स्कॉलर्स है, अपने मेडिकल स्टूडेंट है, उसको काफ़ी दिक्कत आती है एक ही चीज़ का अलग अलग नाम होने से। इसलिए हमारे रिसर्च और साइंटिस्ट ने सबसे कम समय में उसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 का अभी कुछ दिन पहले 10 जनवरी को ये पब्लिश कर दिया। उसे अपने सब लोग, सब सिस्टम, सब पथिस को, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सबको इसका बहुत बेनिफिट होना है क्योंकि जो साइन सिम्टम्स अलग अलग अभी नाम से जो बोले जाते थे वही एक ही अम्ब्रेला में आ जाएंगे। तो हम सब लोग एक साथ, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ लेकिन मैं भी यूनानी के बारे में जान पाऊंगा। Quality of the worker, quality of the worker. That's why really this is my that I want all the students to have very good background, really very good background to after you can be able to give very accurate medicine. Because if you have very good practitioner for Unani medicine there, you know, we can promote Unani medicine not only in UAE. We can promote it in Middle East. Initially, the policy of Government of India that was only a very tolerant policy. But in the next 10-15 years, keeping in mind the demand of these systems and emergence of these systems, government has to think about to make changes in the policies. As you can see, that we are witnessing a resurgence of interest in all the traditional systems of medicines. You can see that post-COVID era is the era of traditional system of medicine. In our dispensaries, we have around 85 dispensaries of Ayurveda and Unani in Delhi. We are seeing that there are a lot of patients coming over there, and it is not only patients who are coming for help. There are general public who is also coming for getting advice from the Unani facilities as well as Ayurvedic facilities. So we are seeing this renewed interest. जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी हमारे जो है यूनानी सिस्टम, मेडिसिन, ट्रेडिशनल सिस्टम जितने भी हैं मेडिसिन के, उनमें इंटरेस्ट जो है अभी लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो हमारा ये समय मेन जो है जितना रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इंटरेस्ट जब बढ़ रहा है तो क्रिटिक्स भी बढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को भी अब पूरा जोर लगाना होगा। और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात हमने की है कि जो आपके रिजल्ट्स होने चाहिए रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, ये नहीं कि एक फिजिशियन ठीक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, तो इट शुड बी सेम। तो इसके लिए जो है हमें वी नीड टू वर्क इन टेंडम विद ऑल द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जो न्यू रिसर्च आती है उसको आप अपना पढ़िए, उसको अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करिए अपने आगे जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। एंड with this I wish all the success to this conference. इस तरह के जो कॉन्क्लेव हैं वो किस हद तक जो है कामयाब हैं यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए? बेसिकली जो जितने भी कॉन्क्लेव हम कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं उसमें मेनली क्या होता है कि जो लोगों की रिसर्च हुई है इस फील्ड के अंदर पिछले 1 साल में, तो वो सब लोगों के साथ शेयर होती है। तो जब वो बच्चे जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उन्हें नई रिसर्च का पता चलेगा, उनको ये पता चलेगा हमारे लेक्चुरा कहाँ है, हम किस तरीके से इसको और ठीक कर सकते हैं और हमें क्या और करने
Your good name, ma'am? My name is Amina Al Haydan, coming from UAE for this conference and this I think workshops also. And really, I am He teaches traditional Persian medicine, post diagnosis, medical professionals in many academic sites throughout the country. promoting Dr. Makasma's insights into introduction to SINA therapies and immunomodulatory effects of SINA 1.2 therapy protocols and asthmatic India, lines. they are the leader. India, they are the leader promoting the Unani system and Ayush system. No, we have a lot of challenges in our country. A lot of challenges in our country in UAE. First challenges is really we need that the quality of the practitioner must be high, and also that they should have very good education, that they will be able to give very accurate diagnosis, and also to subscribe very good medicine. What do you think the criteria of Unani is spread all over world right now? Yes. I think that really, Ministry of Ayush, they are doing very good job leading the Unani, not only Unani system, Ayush system in over the world. मेन हमारा मकसद यही है कि यूनानी को प्रमोट किया जाए, जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ और इसको देखें कि रिसर्च हमारे पास क्या हो रही है, क्या चल रही है, और जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए हमने मेला लगाया है, तो वो भी देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो क्या क्या नई एडवांसमेंट्स, नए डोसेज फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो आए थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई आए थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और एडवाइज़र यूनानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आए डॉक्टर कासमी साहब, डीजी CCRAM मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ज़हीर अहमद साहब वो आए, और डॉक्टर कटोच जो एडवाइज़र आयुर्वेदा है वो आए थे इसमें, और UAE से अमीना अल हैदन मैडम आई हैं, जो वहाँ बड़ा एक लोटस वेलनेस सेंटर चलाती हैं, और एक ख़ज़ानी साहब हैं जो शिपिंग पोर्ट के CEO हैं। ये लोग उन्होंने शिरकत करी हमारे इनॉग्रेशन फंक्शन में, और बाकी ऑफ द डाइस बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और फिजिशियंस ने पार्टिसिपेट किया। ठीक। और मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम इसको ग्लोबली प्रमोट करें, इसलिए इंटरनेशनल डेलीगेट्स हमारे ईरान से आए हैं, जर्मनी से हैं, UAE से हैं, और श्रीलंका से हैं। तो गवर्नमेंट जिस तरह से लेके चल रही है, क्योंकि देखिए आयुष की बात आती है तो आयुष में सारी चीज़ें मर्ज हैं, लेकिन जो यूनानी की बात आती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी महसूस हो रही है, दिखाई जो दे रही है। आपको क्या लगता है? थोड़ी बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नोर किया जाता है, ऐसा नहीं है जी, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी पैथी हमारी जैसे हम कहें कि आयुर्वेदा ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। यूनानी क्योंकि 10-15% है, उसी हिसाब से वो बजट वगैरह एलोकेट किया था। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री इग्नोर कर रही है, बट हमें लोग यही है कि यूनानी को थोड़ा सा और प्रमोट हमें भी करना चाहिए और मिनिस्ट्री को। नौशाद भाई, आयुष क्षेत्र मेला चल रहा है, किस तरह का मैसेज है और आज किस तरह का प्रोग्राम ये रहा आज आप लोगों का? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हम लोगों ने 1000 लोगों का उम्मीद किया था, 1000 से ज़्यादा 1500 और 1800 लोग आए, और बड़ा अच्छा है, लोग खुश हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और यूनानी के हर डिपार्टमेंट के लोग, कॉलेजेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर माशाल्लाह बहुत आयुष मिनिस्ट्री के काफ़ी लोग आए और अच्छा रहा। हमारे जो एग्जीबिटर हैं हमारे 50+ में यहाँ पे डिस्प्लेज हैं आयुर्वेदा और यूनानी के फूड के, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मौसम भी खुल गया एकदम, उसका भी बेनिफिट मिला। आज दिन में अच्छा मौसम था, लोग दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, पब्लिक के आने में दिक्कत आएगी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कल और परसों और अच्छा रहेगा। कौन कौन लोग आज जिन्होंने शिरकत करी आज के प्रोग्राम में? आयुष मिनिस्टर थे, दिल्ली का डायरेक्टरेट था सारा, और CCRAM का भी हमारा बाकायदा उन्होंने तो यहाँ पे एग्जिबिट किया है। CCRAM के DG भी आए, आयुर्वेदा के और यूनानी के DG भी आए थे।
तो किस तरह का मैसेज जो है आज की डेट में, जिस तरह से यूनानी को फ़रोग देने के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, आप जो युवाओं को किस तरह का मैसेज है यूनानी के युवाओं को प्रति? ये है कि इस तरह के इवेंट अटेंड करें, रिलेशन बनाएं, अपने बड़ों से कुछ सीखें और एग्रेसिवली काम करें यूनानी के लिए। अगर काम करना है तो सिर्फ अटेंड करके और उसको वहीं के वहीं दबा देना बेकार है। इसको नॉलेज को आगे फैलाना है। हर बच्चा जो भी नया जनरेशन का आता है उसको अपने मोहल्ले में अपने बैच के बच्चों से, सीनियर से, जूनियर से जुड़ करके काम करके एग्रेसिवली काम करना है अगर यूनानी को आगे बढ़ाना है। उडमा लगातार जो है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो आज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लिए किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से है? माशाल्लाह उडमा के 100+ में मेंबर बन गए हैं हमारे, बड़ी खुशी की बात है। और भी जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जल्दी और लोग जुड़ेंगे। और बहुत हर मेंबर हमारा सेटिस्फाई है, खुश है। हर एरिया का, पूरे इंडिया के, केरला, तमिलनाडु और MP, UP, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर स्टेट के मैन्युफैक्चरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।